Good morning to all students. In the last video of class 12 business study, we discussed the chapter number 5th, that is organizing. Under this chapter, we discussed the meaning and concept of organizing, different definition of organizing, features of organizing, importance or significance of organizing, organizing process, which includes four important steps, that is identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, establishing reporting relationship. Thereafter we discuss the various types of organizational structure, that is functional structure and divisional structure. After that we discuss the different types of organization, that is formal organization and informal organization, and as well as we discuss the important part which helps to create the reporting relationship among the people of organization, that is delegation of authority and decentralization. How delegation of authority is different from the decentralization, what are the elements of delegation, that is authority, responsibility and accountability, what are the difference between delegation of authority and decentralization, and the importance of delegation and importance of decentralization for the organization. As well as we discussed the centralization versus decentralization, how centralization different from decentralization, we covered under this chapter. Now we will move to the last topic of this chapter, that is the first topic is difference between formal organization and informal organization, and number 2 the difference between functional organizational structure and divisional organizational structure. So let's start today's topic. The first topic is the difference between different forms of organization. You know very well, in easy word we can say organization means when two or more than two people are working together for achieving a common goal, it is known as organization. Organizing is a process, whereas the organization is a result. Organizing brings together the basic resources in an orderly manner and arranges people in an acceptable pattern so that they can perform activities to achieve specific goals. Organizing units people in interrelated tasks. It is intended to help in getting people to work together effectively towards the achievement of a specific goal. There are basically two types of organization. The first one is formal organization and second one is informal organization. Formal organization is designed by the management to achieve a organizational goal, whereas informal organization arises out of interaction amongst people at work. So the first difference between formal and informal organization on the base of meaning is that the organization created by management in the form of a structure of authority, it is called formal organization, whereas an organization born out of mutual relation is called informal organization and it emerges automatically. So what is formal organization? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर अथॉरिटी स्ट्रक्चर के हेल्प से क्रिएट होता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी द होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर build the formal organization. And informal organization is born out of the mutual relation which arises in the organization automatically as well as for the fulfillment of social needs. On the basis of formation, formal organization is created by managerial decision, यानी डिसीजन लेके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ये जो होते हैं वे म्यूचुअल ट्रस्ट,
एक जगह पे काम करते करते हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हमारा कंफर्ट जोन बढ़ता है, एंड देयर आफ्टर वी क्रिएट अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑन द बेस ऑफ अथॉरिटी, formal organization derives authority from a formal source through the process of delegation and the flow of authority from top to lower levels. But in informal organization, all its members have equal authority through the because of personal qualities. Some member may command greater authority than others. Formal organization में जो अथॉरिटी का फॉर्म होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, किसी के पास कम अथॉरिटी होती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबकी अथॉरिटी बराबर होती है। बट कभी कभी कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ अलग क्वालिटी होती है, सो वो पूरे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और कमांड भी कर सकते हैं। सो ये उनके खुद के द्वारा बनाई हुई ताकत होती है, अथॉरिटी होती है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको अथॉरिटी मिलती है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन देता है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी होती है, वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है इज द पर्सनल अथॉरिटी होती है। बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, all the activities is directed by rules and it is predetermined. It means that it is known beforehand who will do what and how will he do it, who will be boss and who will be subordinate. यानी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा क्लियर होता है कि उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किस रूल्स से फॉलो किया जाएगा, और ये पहले से डिसाइड होता है और एकदम क्लियर होता है कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबॉर्डिनेट होता है, ये पूरी तरह से क्लियर होता है। बट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रूल्स या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होते हैं, कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह का इंडिविजुअल अटैचमेंट होता है, एक इंडिविजुअल कंफर्ट होता है जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कराते हैं। द नेक्स्ट difference, that is on the basis of flow of communication. In the formal organization, communication is defined, it moves according to the scalar chain of authority. यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, यानी सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन एंड अपनी सोच या डाटा किस तरह से दूसरे बंदों को पहुंचाएगा, दूसरे पर्सन्स को पहुंचाएगा, ये पूरी तरह से क्लियर होता है विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। ओके, यानी स्केलर चेन डिसाइड की जाती है हु रिपोर्ट टू होम, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा और उसके बाद वो उस पर किस तरह से एक्शन लेगा। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस प्री डिटरमाइन नहीं होता कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंफर्ट रखता है, वो किसके साथ ट्रस्ट रखता है, सो वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पढ़ा है कि देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ गैंग प्लैंक। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गैंग प्लैंक जो होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द गैंग प्लैंक, यानी कोई किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऑन द बेस ऑफ नेचर, after the discussion of above 5 points, we can say formal organization is more stable or rigid, but informal organization is a more flexible, it is temporary, okay, it is less stable. On the base of leadership, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर वही होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लीडर बनाया जाता है, जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, जनरली दे आर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई लीडर नहीं होता, ठीक है, बल्कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपना लीडर खुद तय करती है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर जो चूज़ करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट चूज़ करता है। सो द इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स will be created by the top level of management, generally they are the manager of that particular department. But informal organization, leader chosen by the whole group. And at the last point, that is a purpose, formal organization create to achieve the objective of organizational goals, whereas informal organization create is to incorporate fulfillment of individual needs.
यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है, इसमें सिर्फ वर्क को प्रायोरिटी दी जाती है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फीलिंग्स, उनके पर्सनल नीड्स, उनके सोशल नीड्स के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती है. सो देयर फोर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, सोशल नीड्स. Okay, so these are the 8 differences between the formal organization and informal organization. Now we will move to the another difference, the difference between different organizational structure. You know very well there are basically two types of organizational structure. Organizational structure deals with the overall organizational arrangements in an enterprise. The first one is functional organizational structure and second one is divisional organizational structure. In functional organizational structure, activities are grouped on the basis of a specialized function to be performed. Activities related to a function are grouped in a single unit with a view to give a well-defined direction to the whole group. For instance, in an individual enterprise, the major function like production, finance, marketing, and personnel may be organized as a separate department. But in divisional organizational structure is created by organizing a set of autonomous division or units whose activities are coordinated by the central headquarters of the company. For example, a company may have 3 product divisions such as textile, cement and chemical division. So the whole organization firstly divided on the basis of their products, that is textile department, cement department and chemical departments, and thereafter we classified these 3 products division on the basis of their function. So now the first difference between functional and divisional structure on the basis of meaning is this: functional structure refers to grouping of job of similar nature under one department, but in divisional it refers to the grouping of job of one product under one department. यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है उसका ग्रुप करते हैं, यानी ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कहते हैं. जैसे प्रोडक्शन एक जॉब है, सेल्स एक जॉब है, फाइनेंस एक जॉब है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक जॉब है. सो उसके बेसिस पे हम लोग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं. बट डिवीज़न स्ट्रक्चर में हम लोग प्रोडक्ट को बेस मानते हैं. अगर कोई कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वो पहले अपने पूरे डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगी, और देयर आफ्टर एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शनल स्ट्रक्चर. यानी हर प्रोडक्ट का अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा. उस प्रोडक्ट में कौन कौन से फंक्शन इस्टेब्लिश्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उस डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है. ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, you know very well, functional structure is based on the basis of work, whereas the divisional structure is based on the basis of product, and thereafter it is supposed by the function. On the basis of specialization, functional structure specialization of job is required. Yes, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है वो वर्क का स्पेशलाइजेशन होता है. यानी अगर आप प्रोडक्शन वर्क में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे. अगर आप सेल्स में फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे. अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड हैं, फाइनेंस फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं, सो यू आर वर्किंग इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट. बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर आपके लिए फंक्शन का स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. सपोज यू हैव अ नॉलेज अबाउट दी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, तो यू आर working in a textile department. If you have a knowledge about the cosmetic, so you are working in a cosmetic department. So the specialization required in the functional structure which are based on the function, and in the divisional structure you have a knowledge and experience in the field of particular products. On the basis of responsibility, functional structure difficult to fix responsibility on a department. But in the divisional structure, there is a easy to fix responsibility for the performance. On the basis of managerial development, functional structure is difficult as such as functional manager has to report to the top management. जो functional structure होता है वो काफ़ी difficult होता है क्योंकि उसे function manager
को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। बल्कि डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी एकदम क्लियर होती है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हेड बनाया जाता है, फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हेड के अंदर सारे फंक्शन हेड काम करते हैं। सो यहाँ ईजी ऑटोनॉमी होती है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती है। जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट हेड के पास जाएगा और वो उस प्रोडक्ट हेड से उस फंक्शन के प्रॉब्लम्स को इन्फॉर्म करेगा। बट अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट हेड है ही नहीं कोई, जैसा हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको बार बार आएगी और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हेल्प भी नहीं करेगा। सो इससे मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आप सिर्फ फंक्शन के स्पेशलाइज्ड ही बन जाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, आप अदर प्रोडक्ट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाते। ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, देखिए कॉस्ट के बेसिस पे देखा जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो उसका साइज कम होता है तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। एज वेल एज वहाँ एक काम एक ही बार किया जाता है, जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट करता है, यानी परचेस का सारा काम परचेस डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स का सारा काम सेल्स करेगा, एंड फाइनेंस का काम सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। बट इन द डिविजनल स्ट्रक्चर पहले हम लोग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन डिसाइड करते हैं। सो देयर आर डिविजनल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, ओके। मेडिसिन का अलग एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होगा, एंड टेक्सटाइल का अलग होगा। तो एक ही कंपनी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का यूज़ कर रही है, यानी काम एडवर्टाइजमेंट ही है जो जनरली एक ही डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन इसे हम प्रोडक्ट वाइज अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो और अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पाया जाता है, फंक्शनल में नहीं पाया जाता। ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल डिपार्टमेंट हैव वर्क्स एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, क्योंकि फंक्शन के बेस पे होता है तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो आप जब बहुत ही अच्छे से डीप स्टडी करके समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन लाना इसलिए संभव नहीं हो पाता या डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वहाँ पे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर हम प्रोडक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वर्क के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे फंक्शन जो हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड के अंदर काम करते हैं। ऑन द बेस ऑफ सुटेबिलिटी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। बट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर ऑल दोज कंपनीज, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन which are बिजनेस इन द मल्टी प्रोडक्ट एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, जो कई तरह के प्रोडक्ट्स के साथ हैंडल करते हैं। सो देर आर द 8 डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ वी विल मूव टू द differentiate between functional structure and divisional structure on the basis of their diagram. So the diagram, the first diagram is given on your screen. So first of all, you think this diagram is related to which kind of organizational structure? Think. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हेड में है मैनेजिंग डायरेक्टर, देयर आफ्टर मैनेजिंग डायरेक्टर डिवाइडेड्स और क्रिएट्स देयर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल मैनेजर. So they recruit the different manager for the their different department which are created on the basis of function. So it is an example of functional organizational structure, क्योंकि इसमें सारा डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है.
प्रोडक्शन काम के लिए प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस काम के लिए फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर है, पर्सनल काम के लिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए पर्सनल मैनेजर है। और फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोसेसिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। फाइनेंस मैनेजर के अकाउंटिंग है, फाइनेंस प्लानिंग है, ऑडिट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के मैनेजर के लिए एडवर्टाइजिंग है, सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, मार्केटिंग रिसर्च है। पर्सनल मैनेजर के अंदर रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सो आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले बांटा गया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन और उसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई है। सो इन दिस framework we can easily see the whole organization divided into the 4 part on the basis of the function. So it is an example of functional organizational structure. अगर क्वेश्चन में आपसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस तरह से फ्रेमवर्क बना के डायग्राम बना के आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड डायग्राम। In this picture you can see the head office of the company, and they are thereafter they divide their company planning, finance, research and development, as well as they divided their products into 3 departments, that is textile division, cement division and chemical division. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, जो कॉमन है, जो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। उसके बाद उसने अपने 3 प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट में बांटा है। टेक्सटाइल का भी बिजनेस कर रही है वो कंपनी, सीमेंट का भी कर रही है और केमिकल का भी बिजनेस कर रही है। सो उसने अपने तीनों प्रोडक्ट को क्या किया, सबसे पहले अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड एवरी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव देयर ओन फंक्शनल स्ट्रक्चर, अपना अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। यानी टेक्सटाइल डिवीज़न के अंदर आप देख रहे हैं प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल है। सीमेंट डिवीज़न का अपना प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड पर्सनल है। एंड केमिकल डिवीज़न का आपने देखा प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड पर्सनल है। सो इन द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल द होल ऑर्गेनाइजेशन will be divided will be created their department on the basis of their products units, and thereafter every products division creates its own functional division, functional organizational structure। हर प्रोडक्ट डिवीज़न का अपना अपना एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। सो आई होप कि अब आपको फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बीच में जो डिफरेंस है वो और ईजिली समझ में आया होगा। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो and after the completing the chapter number 5, that is organizing, so today we complete the chapter number 5, the first one, nature and significance of management, principle of management, business environment, planning and organizing. So I will present you some important keywords for case study, and these are the clue words in the case study is being provided here with which will help the student to master the skill to attempt such question। यानी अगर एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आते हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से केस स्टडी गिवन होती है, तो आप उस केस स्टडीज़ के कीवर्ड्स को स्टडी करके, क्लू वर्ड्स को स्टडी करके आप समझ जाएंगे कि ये केस स्टडी किस कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है। सो दे आर द फ्यू क्लू वर्ड्स गिवन बाय मी विच हेल्प्स टू दी solve the case study. So these are the clue words. The first one is universal concept, that is management. Intangible forces, that is management. Doing the task correctly with the minimum cost, that is efficiency. Reducing cost, efficiency. Achieving targets and goal, effectiveness. Focus at cost benefit analysis, that is efficiency. Essence of management, coordination. Aims to achieve organizational goal, that is management is goal oriented. Quality of management, coordination. Ongoing process, management. Scientific principle, universal validity. Systematic body of knowledge, science. Code of conduct, profession. Dedicated and committed services, service motive. One best method
that is principles, science, not a rule of thumb. Techniques, method study. Restricted study कहाँ होती है? प्रोफेशन में. Amount of authority and status, level of a manager. Coordinate the activity, जहाँ एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन. डिटरमाइनिंग इन एडवांस, क्या चीज़ पहले से डिटरमाइन की जाती है, दैट इज अ प्लानिंग. इंसेंटिव बोनस प्लान, वर्कर्स को इंसेंटिव बोनस मिलता है. बोनस देने के लिए कौन से प्लान यूज़ किया गया है? डिफरेंशियल वेज, पीस वेज सिस्टम, विच आर गिवन बाय द F.W. टेलर इन देयर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. वन हेड वन प्लान, एक प्लान के लिए एक हेड हो, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्रिंसिपल डेट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रिंसिपल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सब प्लानिंग. ओके, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट इज ऑल्सो प्लानिंग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल, evaluatory nature, must be based on fact, timely, realistic and subject to measurement and evaluation. कौन सा ऐसा डिसीजन होता है जो फैक्ट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, रियलिस्टिक पे डिपेंड करता है, और जो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सारे डाटा को मेज़र करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द साइंटिफिक डिसीजन. प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को ओवरलैप ना करें, बार बार एक ही एक्टिविटी ना करें, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो देयर शुड बी अ वन प्लान फॉर द वन सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही प्लान होना चाहिए. प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, एक हेड के लिए एक प्लान हो, एज वेल एज एक सबऑर्डिनेट के लिए एक हेड भी होना चाहिए. वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है? दैट इज़ द यूनिटी ऑफ कमांड. अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, यानी एक बंदा एक ही सुपीरियर के लिए सब अकाउंटेबल हो, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. ओके, नाउ विल मूव टू द इन्वायरमेंट चैप्टर. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि बिजनेस एक्टिविटी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है? जनरली इकोनॉमिकल, पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है, सोशल, दोनों करता है. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो 99% केसेस में हमारे बिजनेस एक्टिविटी के लिए प्रॉफिटेबल होता है. इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, दैट इज जनरल इन्वायरमेंट, जिसे हमने पता किया. जनरल इन्वायरमेंट इट मीन्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स ओनर्स, मैनेजर्स, सप्लायर, lenders. External, public, tax authority. Okay. Directly influence the working of a business, that is specific environment classified into the two things, micro and macro. Micro level पे and macro level को हम लोग क्या बोलते हैं? Dimension of the business environment. General stability and peace in the country, किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी रहे और पीस रहे, तो विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए प्रोसेस क्या है? प्लानिंग. प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, एक्शन को करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टिंग नहीं, प्लानिंग. एक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्शन. एम्स टू डिटरमाइन हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, पॉलिसी. यस, किसी काम को कैसे करना है ये पॉलिसी बताती है. जनरल गाइडलाइन क्या प्रोवाइड करती है? पॉलिसी. पॉलिसीज़ आर डेराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव से ही हम पॉलिसी डिसाइड करते हैं. पॉलिसीज़ आर डेराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. एम टू डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, सो इट इज़ ऑब्जेक्टिव. मोस्ट स्पेसिफिक एंड रिजिड स्टेटमेंट, दैट इज रूल्स. रूल्स कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़. Broad guideline, procedure. More flexible as compared to the rules, procedure. Yes, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. रूल्स तो रिजिड नेचर का होता है, लेकिन रूल्स से प्रोसीजर भी क्या होता है? रिजिड नेचर का होता है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू रूल्स. अगर रूल्स 100% रिजिड है तो प्रोसीजर 99% रिजिड है. Aims to standardize the way of completing a task, that is methods. Relate to mutual and mechanical ways of doing the task, methods. Transforming plans into action, organizing.
Classification of organization, that is functional and divisional. When job related to one department, group under one department, divisional. Groups of jobs of similar nature under one department, functional. Structure of authority relationship created by manager, formal. Network of social responsibility arising out of the interaction of among employees, that is informal organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है उसे हम फॉर्मल कहते हैं, और जो चीज़ें इंट्रैक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन इंट्रैक्शन से अराइज होती है, सोशल रिलेशनशिप से अराइज होती है, उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से, क्योंकि वहाँ काम को बांटा जाता है. ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द असाइन ड्यूटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन 52 and 53. Accountability comes from the responsibility and responsibility comes out from the assigned duties. Right of an individual to command his subordinate and to take decision, that is authority. Yes, what is authority? Right of individual to command his subordinate and to take action. What is the meaning of sharing work and authority by the superior with his subordinate? That is delegation of authority. जब अपना सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ अथॉरिटी शेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं. एंड रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. यानी जब हम सारी अथॉरिटी लिमिटेड पर्सन के हाथ में ही रखते हैं, ज़्यादा लोगों को तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. एंड रेफर्स टू इवनली एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स. जब उसी अथॉरिटीज़ को हम प्रॉपरली इवनली सिस्टमेटिक रूप से सभी लेवल्स पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल में, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. सो इन टुडेज़ वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन informal organization and informal organization. Thereafter we discussed the difference between functional organizational structure and divisional organizational structure. And thereafter we discussed the basic terms which helps to the solving the case studies, the clue words which helps to the every student for solving case studies. सो आज हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है. सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दिस चैप्टर्स और द प्रीवियस चैप्टर, सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.